Hi everyone, my name is Aksha. I welcome you all on my YouTube channel Aksha Tutorials. So class 12, in our previous lecture we have discussed about the structure of stamen, male reproductive part of the flower, TS of anther, its structure, microsporangias, their four walls. So in today's lecture we are going to discuss about the microsporogenesis, because in our previous lecture we have discussed about the structure of microspores, but how those microspores will be formed, that we are going to discuss in today's lecture. Now जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, just go into the term microsporogenesis. तो microsporo means microspores, right? Genesis means the formation. So obviously we are going to form the microspores. What are these microspores? These are just the male gametes. So plants के case में male gametes, pollen grains, they are formed from the microspores. So microspores को pollen grains भी बोलते हैं. तो कैसे ये pollen grains, कैसे ये microspores form होते हैं, that we are going to discuss. So it is going to be very interesting. But before going on to detail of this microsporogenesis, we must have to recall some previous terms. तो माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करें, व्हाट वाज इट, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हमने कल ये स्ट्रक्चर किया था. इट इज शोइंग द टीएस ऑफ द एंथर. दीज आर इट्स फोर थीकास एंड ईच थीका इज हैविंग वन माइक्रोस्पोरेंजिया व्हिच इज ऑलमोस्ट सर्कुलर. अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस माइक्रोस्पोरेंजिया, तो अगर मैं सिर्फ एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करूं, तो दिस माइक्रोस्पोरेंजिया इज हैविंग फोर वॉल्स, राइट? फोर लेयर्स थी उसकी. कौन कौन सी? फर्स्ट वाज द एपिडर्मिस, सेकेंड वन वाज द एंडोथीशियम, थर्ड वन middle layers. They could be more in number, and the most inner one is called as the tapetum, which provides the nutrition, right? अब बच्चे, yesterday I got a message from one of my students that ma'am, how to make these complex diagrams. So here I am going to make just a raw diagram so that you will be able to understand then how to make it, right? Because in biology or science we are not going on to the beautification of the diagram. We need to understand the logic behind it, right? So let's try once. तो अगर हम बच्चे बात करें इनकी फोर लेयर्स की, लेट्स गोइंग फ्रॉम द इनवर्ड्स. तो इनर मोस्ट लेयर इज द टेपेटम, लेकिन टेपेटम के अंदर अगर हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें, सपोज दिस इज द टेपेटम, तो टेपेटम के अंदर ये जो टिश्यू है दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू. व्हाट इज टिश्यू? द ग्रुप ऑफ सेल्स. मैंने आपको बताया था स्पोरोजीनस के टिश्यू में जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज. So suppose I am forming the sporogenous tissues cells. These are the cells, ठीक है? These are having some nucleus inside it. तो ये obviously more in number हो सकते हैं. अब कैसे भी इसका structure जो है you could draw, ठीक है जी? They are very compactly arranged cells. ये compactly arranged cells हैं, ठीक है? So let's consider these are regarded as the innermost tissue, which is the sporogenous टिश्यू, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर आएगी, व्हाट इज दैट? दैट इज ऑफ कोर्स द लेयर व्हिच इज हैविंग द टेपेटम. सो टेपेटम आर द सेल्स व्हिच कुड बी द, मैंने आपको उसके दो फीचर्स बताए थे अगर आपको याद हो. पहला फीचर बताया था दैट दे कुड बी द बाइन्यूक्लिएटेड, है ना? उसमें ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, मोर देन वन. दूसरा, दे मस्ट बी हैविंग द डेंस साइटोप्लाज्म इनसाइड इट. अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी में भी इसकी डायग्राम देखेंगे ना, तो उसमें उन्होंने टेपेटम के सेल्स में साइटोप्लाज्म शो किया हुआ है, बट नजर नहीं पड़ती. इतनी ज़्यादा डीपली हमने एनसीईआरटी में जाना है. सो दिस लेयर, दिस वॉल इज शोइंग द टेपेटम, राइट, हैविंग देन साइटोप्लाज्म इनसाइड इट. तो आफ्टर टेपेटम द नेक्स्ट लेयर्स, दे कुड बी वन और मोर इन नंबर, so they are regarded as the middle layer. Suppose this is showing the middle layer, ठीक है जी? एक और बना देते हैं हम इसके साथ ही. Now suppose these are the cells of the middle layer. तो after the middle layers the next will be one cell thick, लेकिन मैंने आपको बताया था they are showing middle
लेयर्स। तो मिडल लेयर्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर फॉर्म होगी दैट विल बी रिगार्डेड एज द एंडोथीशियम। Why I am making these cells are large enough? क्योंकि मैंने आपको बताया था in comparative to rest of the layers जो large size big size cells होते हैं that are in the case of एंडोथीशियम। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर की अगर बात करें तो दैट मस्ट बी हैविंग द आउटर मोस्ट लेयर विच इज रिगार्डेड एज द ऑब्वियसली एपिडर्मिस, द outermost layer of the cell, and it provides protection. So I hope with this you can undergo the diagram. तो आपको rough diagram बनानी है, you need to go on to the logic behind this. So it is showing the epidermis, the outermost layer which will provide protection. Then next layer is showing the endothelium whose cells are comparatively big in size, right? The next two layers are showing the middle layers. The next tapetum is showing the cells having dense cytoplasm inside it. And then there is this sporogenous tissue. तो ये जो पूरी सर्कल, इसको आप एनसर्कल बना सकते हो, थोड़ा सा मैंने लीनियरली बना दिया. That is it. I hope with this now you are able to understand to how to draw the diagram, right? The raw diagram. Okay, so moving onwards, अब हम चलते हैं यहाँ पे sporogenous tissue में. तो बच्चे मैंने आपको बताया था if it is the case of young anther, अगर तो ये young anther है तो what will happen? This is considered to be the microsporangia, right? जैसे जैसे ये डेवलप होता जाएगा it will be growing into the pollen sac. क्यों? क्योंकि उसमें pollen grains बनने शुरू हो जाएंगे. How those pollen grains will start growing. अब यहाँ से हम चलते हैं sporogenous tissue की तरफ. ध्यान से समझना what will happen. जो sporogenous tissue है, now what is the tissue? Obviously the group of cells. तो that will undergo mitotic division forming the cells which are MMC, जिनको आप PMC भी बोलते हो, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. This MMC means माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. PMC pollen mother cells. माइक्रोस्पोर कहो pollen कहो एक ही बात है. तो these cells will become PMC और MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. सपोज मैं और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ बच्चे, अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रही है तो अगर मैं कहूँ that I am talking about this whole tissue, मैं इसका एक सेल निकाल रही हूँ बाहर, just a single cell. वो सिंगल सेल जो है वो कौन है? That is this MMC और PMC. This is microspore mother cell. याद रखना कहीं पे भी मदर सेल आ गए that means it is undergoing division. Which division? Meiosis. It will always undergo meiotic division. अब दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग दिस meiosis, दिस मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है 2n, this will undergo meiosis and form 4 haploid gametes, 4 haploid spores. यहाँ पे 4, वो भी क्लस्टर की फॉर्म में ग्रुप अप होके इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो बने हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो मदर सेल जो नेक्स्ट गेमीट बनाएगा वो कौन है? माइक्रोस्पोर्स है ना. देखो अगर मेगास्पोर मदर सेल है तो वो मेगास्पोर बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो वो माइक्रोस्पोर बनाएगा. तो इस मदर माइक्रोस्पोर सेल से जो सेल्स बने हैं, जिन सेल्स का ग्रुप बना है, दे आर द माइक्रोस्पोर्स. व्हाट आर दीज? दीज आर माइक्रोस्पोर्स और ये हमेशा ग्रुप में बनेंगे, क्लस्टर में. दीज एवरी माइक्रोस्पोर विल बी हैविंग n haploid, बनेंगे 4, 2n से 4n ईच, है ना. आप इसको 4n मत समझना, 4n 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड. अब देखो ध्यान से, ये 4 का ग्रुप बनता है. दैट इज व्हाई this structure, this whole structure is also called as microspore tetrad या फिर tetrad microspore, कुछ भी कह सकते हो. ठीक है जी. अब एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ. What is that?
ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं ना, ये अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट दैट कुड डिफर। सपोज दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, ये इस तरीके से प्रेजेंट है ये सेल्स, 1 2 और 3। अच्छा, अब आप कहोगे अरे यहाँ तो 4 है मैम, अभी तो आपने कहा कि 4 में बनना है, तो यहाँ पे तो 3 ही सेल्स नजर आ रहे हैं। इसके केस में एक सेल पीछे होता है, 3 आपको फ्रंट में नजर आ रहा है, एक सेल इसके पीछे वाली साइड पे होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्रागोनल। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अगर ये 4 सेल्स इस तरीके से अरेंज हो, 1 2 3 एंड 4, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसोबाइलेटरल। अगर ये चारों इस तरीके से अरेंज हो, 1 2 3 एंड 4, दिस अरेंजमेंट इज द लीनियर। वैसे अलग अलग तरह की एक और बता देती हूँ, इस तरीके से भी इनकी अरेंजमेंट हो सकती है। 1 इज एट दिस, 2 3 और ये 4। दिस इज कॉल्ड एज डेक्यूसेट अरेंजमेंट। डेक्यूसेट एक और तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। दिस इज टी शेप्ड। ध्यान से देखो तो टी, तो इनमें से किसी भी तरीके से इनकी शेप प्रेजेंट हो सकती है, बट दे आर ऑलवेज ग्रुप अप, क्लस्टर में प्रेजेंट होंगे। ये तो इजी था यहाँ तक, कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ती है, ध्यान से समझना बच्चे। एक माइक्रोस्पोर ने, एक एमएमसी ने 4 गेमीट्स बनाए हैं, राइट? हमने कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल ले लूं, उसके एक सेल से 4, एक टेट्राड बना है ना, 4 सेल्स बने हैं, तो उसमें तो कितनी सेल्स है, न्यूमरस ऑफ सेल्स, हजारों सेल है, तो हजारों सेल से 4000 सेल्स बनेंगे, 4000 माइक्रोस्पोर्स, 4000 पॉलन ग्रेन्स या इससे भी ज़्यादा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपको कहा था स्पोरोजिनस, यहाँ पे डायग्राम बनाई थी पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू की, और उस पूरे टिश्यू में से सिर्फ एक सेल हमने निकाला था, उसकी बात की थी, और एक सेल डिवाइड होके मेयोटिकली 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम एक टेट्राड बोलते हैं। तो अगर उस पूरे टिश्यू का एक सेल 4 सेल्स बना रहा है, 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहा है, तो हजारों सेल्स जो हैं, हजारों माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स जो हैं, दे विल फॉर्म 4000 ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। समझ आई बात? इसीलिए जो हम वो स्ट्रक्चर इतनी देर से कर रहे हैं, सपोज दिस इज टेट्राड की बात हो रही थी ना, ये है इसके माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ पे ये डिविजन्स होने के कारण सपोज ये कितनी ज़्यादा न्यूमरस ऑफ माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स विल फॉर्म्ड। नाउ व्हाट हैपन, अब ये जो एक साथ अरेंज है ना, क्लस्टर में है, दे विल स्टार्ट राउंडिंग ऑफ एज इंडिविजुअल पोलन ग्रेन। ये सपोज इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द इंडिविजुअल पोलन ग्रेन इनसाइड इट। समझ आई बात? इट विल स्टार्ट राउंडिंग ऑफ एज इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन। तो 4000 से भी ज्यादा आपके पॉलन ग्रेन्स बन गए। दिस विल स्टार्ट फॉर्मिंग लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4, अलग अलग पॉलन ग्रेन्स होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूमरस ऑफ पॉलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड। तो जब वो एंथर डेवलप कर रहा है, राइट, इट विल स्टार्ट डेवलपिंग, इट विल गेट मैच्योर, आफ्टर इट विल गेट डिहाइड्रेटेड, पूरा वाटर लॉस होने के बाद इट विल रिलीज आउट। कहाँ से? कल बताया था मैंने, इस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देयर विल स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ dehiscence. This line of dehiscence is also called as, कहाँ लिखूं भाई, स्टोमियम। ये नोट कर लो वर्ड, स्टोमियम भी बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस को। तो व्हाट विल हैपन,
all the pollen grains will start releasing out for further pollination. समझ आई बात? तो दिस इज हाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस. इस तरीके से माइक्रोस्पोर बने हैं. तो थोड़ा सा आपको अगर आप कहो तो दोबारा से बता दूं व्हाट हैज हैपेंड. एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं बच्चे सारा, क्योंकि डोंट कंफ्यूज अंडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक. जितना उसको सिंपल बेसिक में ले जाओगे उतना समझना इजी हो जाएगा. एंड इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप बेसिक से समझो. फोकस हमने क्या किया, हमारे पास थे स्पोरोजीनस टिश्यू. ठीक है जी. उस स्पोरोजीनस टिश्यू में हुई माइटोसिस, जिसमें सेल्स अलग अलग डिवाइड हो गए. वो सेल्स कौन से हैं? वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिनको आप पॉलन मदर सेल्स भी बोलते हो. फिर इट अंडरगो मेयोटिक, मतलब मेयोसिस डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन होगी, उसमें मेयोसिस होगी. और क्या बना आपके पास? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, है ना. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड, 4 माइक्रोस्पोर बने. समझ आई? दे माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं. अल्टीमेटली क्या होगा? दे विल गेट राउंड ऑफ. उनकी राउंडिंग ऑफ हो जाएगी ऑफ इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन. तो उससे सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए. राइट. अब पॉलन ग्रेन्स तो बन गए. व्हाट आर पॉलन ग्रेन्स? माइक्रोस्पोर्स, है ना, मेल गेमीट्स. तो अब जब ये इसमें से पॉलन ग्रेन्स आपके बन गए हैं, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? ध्यान से देखो, ये सपोज कनेक्टिव टिश्यू है. इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, न्यूमरस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स हैव बीन फॉर्म्ड. अल्टीमेटली ये पूरा थीका जो है पॉलन ग्रेन्स के साथ भर जाएगा. ये सारा पॉलन ग्रेन्स के साथ फिल हो जाएगा. व्हाट विल हैपन? यहाँ से जो लेयर्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, इट विल गेट रप्चर्ड. राइट. कंस्ट्रिक्ट होने के बाद रप्चर हो जाएंगी. तो ये जो है लाइन, दिस इज योर लाइन ऑफ dehiscence. And this line of dehiscence is also called as stomium. So through this stomium what will happen? All the pollen grains will released out. वो इस longitudinal section में से बाहर आ जाएंगे for pollination. इसीलिए जैसे अब आपको पता है पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स यूज होते हैं. सम बायोटिक, सम एबायोटिक. सपोज विंड पॉलिनेशन है, हवा ने उड़ा के ले जाना है, तो हवा को तो पता ही नहीं कहाँ से लेकर जाना है, कहाँ को लेकर जाना है. तो इतने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ 4000, 5000 मल्टीपल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स विल बी रिलीज आउट कि उनमें से कोई तो पहुँचेगा. समहाउ इट विल 1 or 2 or 4 or 5 will land on that stigma and undergo pollen pistil interaction. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, that I have told you in today's lecture about the microsporogenesis, कि माइक्रोस्पोर बनेंगे कैसे, how the pollen grains will formed. With this I hope आपको अच्छे से समझ आया आज का lecture, and if you will be having any doubt or query left, then you can ask in the comment section below. With this I am going to end up. So I have completed all the microsporogenesis. In the coming lecture I am going to tell you about the structure of pollen grain. अब pollen grain release हो गया, अब हम pollen grain के बारे में पढ़ेंगे कि उसका structure कैसा होता है, क्या composition है, कौन सी उसकी layers है, outer, inner. That will be detailedly discussed. So stay tuned, keep watching. If you are new to my channel, then please subscribe it. Keep watching, keep smiling. Bye. Thank you.